Hi everyone. So from today we are going to see the lecture series of C programming course. And before going to the actual course of C programming, so first we have the curiosity of to know about something about the computer and what is computer and all that about the computer. So we will start with the computer. So first thing we will have to know about what is a computer. So computer is nothing but it is an electronic device which takes the input and process it and gives some output. So as we know, so computer is an electronic device. So computer is an electronic device. So we have to charge the computer because without charging we can't run the computer. So this is the electronic device. This much is clear. Now, so if you write any program, see this is any program, okay. So we have to give the some input to the computer. So like if in our program, so it is something we will study later. So it is a scanf. Something is there. So using the scanf, we have to take two numbers. A and B, we have to take two numbers, A and B, to add two numbers. So for taking these two numbers, we have to take it from the keyboard, correct? So for taking two number, we have to take it from keyboard, and if you give these two number A and B, so what it will do? It will process these two data A and B. What it will do? It will process it, and it will give the output. And after this line, if you write printf and sum is equal to percentage, sum is equal to A plus B, something like that. So we will study what is all things. So just now for introduction I am telling you. So if I am telling to print a plus b, so it will print a plus b. So what is the value of a plus b? So जैसे कि 10 plus 20, if I am giving the user as a user I am giving 10 and 20, so it will print as 10 plus 20 is equal to 30. So what it gives? It will give the output. Hope this much is clear. So what is the statement of this line? Now, so we have seen the desktop and laptop what we are using is nothing but it is a general purpose computer. Okay. Now the Charles Babbage. So he is the father of the computer, and Lady Ada Lovelace is the first programmer that we have to know. From there only the programming has started in the life. And the Charles Babbage, who was of the England, has invented a difference engine, and the first computer was nothing but it was the abacus. Now the next question is, so we have seen about 0 and 1. So what are zeros and ones? We have to know about what are zeros and ones in computer. तो ये हमारे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है जब भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं कि जीरो और वंस क्या होती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जीरो और वंस होती क्या है। जैसे कि जीरो और वंस सारे चीज में जीरो और वंस होती है। जितने भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं सारे डिवाइस में जीरो और वंस होती है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल एक हार्ड डिस्क का लेता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज एन हार्ड डिस्क, ओके। अब हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डाटा इसके अंदर जो इंस्टॉल होती है वो या तो जीरोस के रूप में इंस्टॉल होती है या तो वन के रूप में इंस्टॉल होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क में एक छोटा सा स्पेस होता है इसके अंदर, ओके। एक छोटा सा स्पेस होता है जिसके अंदर बहुत जगह होता है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ड्यू टू मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज यहाँ पे क्या होती है, नॉर्थ, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट होने लग जाती है, करेक्ट। क्योंकि मैग्नेटिकली चार्ज होगी तो ऑफकोर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगी। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाती है तो उससे क्या होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि जीरो और वन क्या है। अगर ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगी तो ये हमें बताएगा कि वन होगा। अगर नॉर्थ पोल हमारा ऊपर है, अगर नॉर्थ पोल हमारा ऊपर है तो ये बताएगी कि नहीं भैया ये वंस है। और अगर ये नॉर्थ पोल अगर जीरो है तो ये हमारे बताएगी कि अभी ये जीरो है। सो होप आपको समझ में आ गई कि हार्ड डिस्क में जीरो और वन क्या होती है। सो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सो हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क
So in hard disk, if not pole indicate upwards, then it will show, then it will indicate, or it will show ones. Otherwise, if it will be downward, if it will be downward, then it will be if it will be downward, then it will be zeros. So hope this concept you have understood कि zeros और ones क्या होती है. तो अगर यहाँ पे नॉट पोल अगर इंडिकेट आपकी ऊपर की तरफ करती है तो उसे वंस कहेंगे, और अगर नॉट पोल आपकी इंडिकेट जीरो की तरफ नीचे की तरफ करेंगे तो उसको जीरोज कहेंगे. सो होप दिस मच इज क्लियर. सो इसी तरह से हमारे एक रैम में भी जीरो जीरो होते हैं, हर एक कंपोनेंट में होते हैं. अब रैम के अंदर क्या होते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं रैम की. सो लेट अस सपोज यहाँ हमारी ये रैम है. अब रैम के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर. ओके, रैम के अंदर क्या लगे होते हैं? रैम के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर. अब कैपेसिटर क्या होता है? अगर कैपेसिटर चार्ज होगा, अगर रैम के अंदर होता है कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रही है रैम के अंदर, इट मींस इट विल इंडिकेट वंस. अगर कैपेसिटर चार्ज हो रही है तो वो इंडिकेट करेगी वंस, और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रही है या चार्ज नहीं हो रही है, कैपेसिटर अगर चार्ज नहीं हो रही है तो वो इंडिकेट करेगी जीरो. रैम के अंदर क्या है, एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं. इन रैम के अंदर क्या होती है? रैम के अंदर होती है कैपेसिटर. इफ कैपेसिटर इज चार्जिंग, it means it will indicate once, otherwise it will indicate zero. So hope आपको समझ में आ रही होगी कि जीरोज और वंस क्या क्या होते हैं. सो इसी तरह से सारे भी कंपोनेंट में, हर एक कंपोनेंट, जितनी भी छोटी से छोटी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर होते हैं, सब में जीरोस और वंस होती है. और जीरोस वंस मतलब डिफरेंट उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन जीरोस वंस सब में होते हैं. किसी में डिफरेंट पे, किसी में डिफरेंट पे. हर एक कंपोनेंट का अलग अलग जीरोस वंस उसका वर्क करता है, पर कंप्यूटर का हर एक पार्ट्स में जीरो और वंस होते हैं. इसीलिए हम जीरोस और वंस जानते हैं. नाउ प्रोग्रामर के नजर से हर जगह जीरो और वंस के फॉर्म में जो है सो हमें डाटा रहता है, बट सारे हार्डवेयर के लिए जो है सो ये क्या होता है, अलग अलग सिस्टम होता है. जैसे जीरोस और वंस हमने देखा रैम में क्या होता है, कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तब ये वंस होगा. तो हमारी नजर में तो जीरो और वंस होते हैं एक ही जैसे, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर अगर हम पढ़ते हैं तो हार्डवेयर में हमें पता चलता है कि सारी चीज की डिफरेंट चीज होती है. कि जैसे रैम में अलग जीरो और वंस होते हैं, हार्ड डिस्क में अलग जीरो और वंस होते हैं. यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गई होगी. नाउ विल टेक फर्दर. सो हम एक और बात जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. करेक्ट? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. सो व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज नथिंग बट इट इज जीरो और वंस. करेक्ट? अब समझ में आ रही होगी आपको कि जीरो और वंस क्यों समझ में आती है कंप्यूटर को. क्योंकि जीरो और वंस में ही वो इंडिकेट कर पाता है सारे डिवाइस को, जिसके कारण हम जान पाते हैं कि कंप्यूटर जो है सो बाइनरी लैंग्वेज को समझ लिया. तो बाइनरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1100 समथिंग लाइक 1100, दिस इज नथिंग बट इट इज द बाइनरी लैंग्वेज. ओके, इट इज नथिंग बट इट इज द बाइनरी लैंग्वेज. एक और होती है हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज में. एक बाइनरी लैंग्वेज तो होती है और एक होती है असेंबली लैंग्वेज. जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ऐड, दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड 3 4,
दिस इज द असेंबली लैंग्वेज। ओके, सो ऐड 3 4, सो ये क्या करेगी 3 और 4 को ऐड करके आपको रिजल्ट 7 दे देगी। या अगर आप किसी रजिस्टर में स्टोर करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर में आपको स्टोर करके दे देगी 3 + 4 = 7। दैट इज नथिंग बट इट इज द असेंबली लैंग्वेज। नाउ here comes the next language जो हमें आती है, that is called the high level language, that is for example 3 + 4, 3 + 4 is nothing but it is the high level language। ये क्या करती है, it can be converted to the machine language using the any software। ये high level language होती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी इस हाई लेवल लैंग्वेज को हमारी कंप्यूटर या मशीन जो है सो नहीं समझ पाती है। इसको हमें समझाना पड़ता है मशीन को, उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर की यूज करना पड़ता है। जैसे हम अभी सी पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और कंपाइलर पे ही हम सारी कोडिंग करेंगे, और कंपाइलर ही हमारे सारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और कंपाइलर जो होती है सो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है, ये हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं होती है। हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, but this one is high level language is hardware independent language। so hope this one is clear to you। now we'll go further। अब जैसे हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखते हैं, तो जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं तो ये मान लीजिए हमने फाइल बनाया और ये हमारा .c फाइल होती है। जैसे हमने a+b 2 नंबर की ऐड का फाइल बनाया, हमें 2 नंबर को ऐड करना है a+b, तो ये बनाया है। जैसे मैंने इसका नाम रखा सम, तो इसका फाइल हो गया sum.c, क्योंकि सी फाइल का है इसलिए ये सी फाइल एक्सटेंशन लेगा। सो दिस इज sum.c। सो एग्जांपल 3 + 4 जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3 + 4, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स फाइल, इसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे क्या होती है, हमारी sum.c जब हम बना लेते हैं उसके बाद इसको बिल्ड करनी पड़ती है। बिल्ड के लिए नेक्स्ट बनता है इसको बिल्ड कर, जब हम इसको बिल्ड करना पड़ता है, पहले तो हमें सी फाइल को बनाना पड़ता है, फिर हम इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के टाइम क्या होता है, इसमें प्री प्रोसेसर जो होती है वो लाइन चलती है, और प्री प्रोसेसर इसके साथ लिंक होती है, और नेक्स्ट है वो कंपाइलर यहाँ से काम करना चालू करती है। कंपाइलर आपकी जब .c फाइल बनती है उस टाइम में आपको काम नहीं करेगी कंपाइलर, आपको जब बिल्ड करेंगे तब कंपाइलर काम करना। और इसके साथ एक लिंकर होती है जो मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ, लिंकर, व्हाट इज लिंकर। ये तीनों चीज बिल्ड में आके चालू हो जाती है, दैट इज प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर एंड लिंकर। नाउ आफ्टर दिस हमारी एक और फाइल बनती है, दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज नथिंग बट इट इज sum.exe, जिस नाम से हमारी होती है .exe फाइल, जो कि हम दे देते हैं किसी और को चलाने के लिए। हम अपना मेन सोर्स फाइल किसी को नहीं देते हैं। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई जैसे हम कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम सिर्फ सी फाइल जो सोर्स फाइल है वो सिर्फ वो हम अपने पास रखेंगे, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है सो मैं उनको दे दूंगा, जो भी हमारे कस्टमर है। मैं कस्टमर को सोर्स फाइल नहीं दूंगा, क्योंकि सोर्स फाइल में हमने लिखा है कि कैसे ये प्रोग्राम बना है और क्या इसका लॉजिक है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लॉजिक किसी को पता चले। अगर लॉजिक पता चल जाएगा तो वो आराम से कोड लिख लेगा, फिर वो हमें पे क्यों करेंगे। तो इसी कारण हमें कभी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है सो हम कस्टमर को देते हैं, और सोर्स फाइल जो है सो हम अपने पास रखते हैं। सो इट इज नथिंग बट द इट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब हमने तो यहाँ 3 + 4 करके हाई लेवल लैंग्वेज में सी फाइल में लिखा, बट जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है तो यहाँ पे वो बाइनरी लैंग्वेज बन जाएगी। जैसे ये कुछ भी 101011 लाइक दैट, 3 और 4 क्या हो जाएगी 1100 समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे बन के और वो इसका आउटपुट दे देगी। होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट इज सोर्स फाइल एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। अभी हम लोग इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे।
फर्स्ट हम लोग पहले सी लैंग्वेज की हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। यस, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में सबसे फर्स्ट हम 1960 की बात करेंगे। Yes, 1960 में एक लैंग्वेज हुआ करती थी, दैट इज कॉल्ड एज अलगोल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज का नाम था अलगोल, जो कि बनाया था इंटरनेशनल ग्रुप ने। इनको बनाया था इंटरनेशनल ग्रुप ने, अलगोल लैंग्वेज। इंटरनेशनल ग्रुप ने अलगोल लैंग्वेज को बनाया था। देन 1967 सेकेंड हुआ 1967 में एक और लैंग्वेज बनी, दैट इज नथिंग बट इट इज बीसीपीएल लैंग्वेज बनी थी 1967 में। 1967 में एक लैंग्वेज बनी थी बीसीपीएल, इसकी फुल फॉर्म बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, इस लैंग्वेज को बनाया था मार्टिन रिचार्ड्स ने। Martin Richards in 1967 has invented a language called as BCPL, that is nothing but a basic combined programming language. Now the next come in the year. Now next हमारी 1970 का वो साल जब एक और लैंग्वेज इन्वेंट हुआ, that is called as B लैंग्वेज। इसको बनाया था केन थॉमसन ने। बीसीपीएल लैंग्वेज और ये बीसीपीएल लैंग्वेज के बाद बी लैंग्वेज जो है सो हमारा बी लैंग्वेज यहाँ पे हमारा इन्वेंट हुआ था बी लैंग्वेज 1967 में। इनको बनाया था, जैसा कि हमने आपको बताया था, इनको बनाने वाले थे केन थॉमसन। केन थॉमसन जिन्होंने 1970 में इस लैंग्वेज को बनाया था। ये बी लैंग्वेज जो थी, ये थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट ये लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लैंग्वेज उस पर डिपेंड थी। जब ये बीसीपीएल जब ये बन रहा था, एक्चुअली बीसीपीएल जब बना था, जो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसमें यहाँ पे आपको मार्टिन रिचार्ड्स, केन थॉमसन और
आपको डेनिस रिची, ये तीनों ने मिलकर बीसीपीएल पे काम किया था, बट मार्टिन रिचार्ड्स ने अपना नाम ले लिया और उन्होंने बीसीपीएल में अपना नाम रख दिया। अब जब बचे थे दो, जो केन थॉमसन और डेनिस रिची। ना अब केन थॉमसन ने 1970 में निकाल दिया था एक लैंग्वेज जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब केन थॉमसन ने 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की निकाल दी, सॉरी बी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड बी लैंग्वेज जो डिपेंड थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे निकाल दी। अब बेचारा अकेले बच गया डेनिस रिची। इन्होंने बी लैंग्वेज क्यों नाम रखा था, क्योंकि जब बीसीपीएल इन्होंने बना रहा था तो बीसीपीएल का इन्हें समझ में नहीं आया कि इसका नाम क्या रखे, तो इन्होंने बीसीपीएल को देखा और इनका फर्स्ट लेटर को चुरा के इनका नाम बीसीपीएल रख दिया। नाउ द नेक्स्ट, अब बारी थी जो बच गए थे मार्टिन रिचार्ड्स, ऑलरेडी इन्होंने बीसीपीएल कर लिया, केन थॉमसन ने 1970 कर लिया। अब यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेनिस रिची ने भी काफी अच्छी खासी मतलब पढ़ाई कर ली थी और अच्छे खासे वर्क कर लिए थे। तो उन्होंने 1972 में एक लैंग्वेज को निकाला दैट इज नथिंग बट, उन्हें वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी कि इस लैंग्वेज का मैं नाम क्या रखूं, क्योंकि ऑलरेडी बीसीपीएल ये लोग नाम रखने वाले थे, लेकिन जो लैंग्वेज ये लोग बनाए थे उसको ऑलरेडी मार्टिन रिचार्ड्स ने बना लिया। फिर केन थॉमसन ने इनका पहला लेटर जो कि बी था उन्हें चुराकर बी लैंग्वेज बना लिया। अब बारी थी डेनिस रिची की। इन्होंने क्या कहा, जब फर्स्ट लेटर तो केन थॉमसन ने ले लिया दैट इज कॉल्ड बी लैंग्वेज, तो मैं इनका सेकेंड लेटर ले लेता हूं जो कि सी है। बीसीपीएल में सेकेंड लेटर सी उन्होंने डेनिस रिची ने वो लिया और इन्होंने ये भी सोचा कि बी के बाद सी सही है, तो उन्होंने सी लैंग्वेज की इस तरह से इन्वेंट कर दी और सी लैंग्वेज जो इन्वेंट हुआ उन्होंने किया डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज की इन्वेंट। होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे हिस्ट्री क्या थी, कैसे इन्वेंट हुआ। अब आगे देखते हैं। Now we will see about two types of software. So we will see about the types of software. Types of software. Yeah. So first one is applications of system software. What is system software? Yeah. So what is system software? It is nothing but it is closely interact with the hardware. मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को करते हैं जो कि हार्डवेयर से क्लोज रहते हैं। मतलब हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज को जो है सो ये समझने में, मतलब हार्डवेयर के बीच में जो है सो एक मीडियम का काम करते हैं। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि जो सिस्टम के लिए वर्क करे दैट इज ओनली कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोल दिया था इनके एग्जांपल में कि हम लोग देखने वाले हैं कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करती है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है सो मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। मशीन लैंग्वेज क्या है, ऑलरेडी हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सो हार्डवेयर में ये क्लोजली इंटरेक्ट करेगी हार्डवेयर से, तभी जाके ये दे पाएगी। वन इज कॉल्ड एज कंपाइलर। और एक और है ट्रांसलेटर, वो हमें ये भी एक चेंज करती है हाई लेवल लैंग्वेज को भी। और एक और है जो हम इंटरप्रेटर, वो भी होती है जो भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है सो मशीन लेवल लैंग्वेज में करती है। ये हम जावा और जब पाइथन पढ़ेंगे तो आपको पाइथन वाली सीरीज चालू हो गई होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होती है, क्योंकि पाइथन को प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें इंटरप्रेटर की जरूरत होती है और सी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम को में रन करने के लिए कंपाइलर की जरूरत होती है। सो दिस वन इज अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर कुछ नहीं जो हार्डवेयर से क्लोजली इंटरेक्ट हो, मीन्स जो सिस्टम के लिए वर्क करे।
that is called as a system software, for example compiler or interpreter, translator. Second one is application software. Application software. So what is application software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपल सा अगर बोले तो वो हैंडल यूजर प्रॉब्लम होता है, मीन्स जो यूजर की प्रॉब्लम होती है उनको जो दूर करे, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप इमेज को एडिट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, इमेज एडिटिंग, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और चीज मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे तो जो सिस्टम के लिए वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए वर्क करते हैं, दैट्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स फॉर द यूजर, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स फॉर द सिस्टम, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स फॉर द यूजर। सो एक और होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही मिल जाएगी, दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर डिपेंडेंट operating system. So hope you understood. So what is the difference between the system software and application software? So operating system, so operating system के बारे में हम लोग देख ही लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होती क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम What is operating system? It is nothing but it is a system software, जो कि मैंने आपको बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। so it is system software which acts as an interface between the user and the hardware. तो ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो है सो एक ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो है सो एक इंटरफेस की तरह जो है सो काम करता है। जब भी आपको कंप्यूटर को जो है सो ऑफ रहती है आपकी कंप्यूटर, और जब आप उनको ऑन करते हैं तो उस टाइम जो है सो आपके अंदर जो है सो रैम को जो लोड करती है वो वही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कंप्यूटर को ऑन करने वक्त जो आपको रैम को लोड करेगी, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो है सो आपके और हार्डवेयर के बीच में क्या, दोनों के बीच में जो दोनों की भाषा समझे उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। So hope this is clear. So what is operating system, types of software, that is system software, application software, and what is operating system. Now हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग आखिर करते क्यों, प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों करते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, करेक्ट। सो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के कुछ स्टेप होते हैं, तो वो हम देखने चाहते हैं कि हाउ टू डेवलप द सॉफ्टवेयर यूजिंग दिस, बिकॉज वी आर यूजिंग द सी लैंग्वेज, सो वी विल सी अबाउट द सी लैंग्वेज, हाउ टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर यूजिंग ए सी लैंग्वेज। यस, हाउ टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर यूजिंग सी लैंग्वेज। सो जैसे कि मैंने आपको पुराना वाला वो बनाया था, उसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले फिर से बना लूँ तो मैं सबसे पहले जो है सो जैसे कि हमने वहाँ पे सम डॉट सी करके एक बनाया था, करेक्ट, क्योंकि जो हमें सी फाइल बनानी होती है दैट इज कॉल्ड द सम डॉट सी। सो जैसे 3 + 4, सो इसको क्या करते हैं, सोर्स फाइल करते हैं, सोर्स फाइल sum.c, करेक्ट। सो दिस इज द सी फाइल। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, सो स्टेप 1, so step 1 is to create a source file, that is using the .c language, create source file. We have to first create a source file that is nothing but a .c language.
that is .c file, that is the only the source file. So hope step 1 is clear. So first हमें सबसे पहले हमें sum.c that is the source file जिसको हम C फाइल में कहते हैं वो हमें बनाने पड़ती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें बिल्ड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्टेप टू बिल्ड। यहाँ पे ये क्या करती है, बिल्ड होती है और बिल्ड होके क्या बन जाती है, .exe फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज sum.exe। यहाँ पे sum.exe बन के तैयार हो गई और ये होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल ओके। सो we'll say step 2। तो हमें स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, स्टेप 2 बिल्ड सॉफ्टवेयर। बिल्ड सॉफ्टवेयर मीन सॉफ्टवेयर नथिंग बट .exe फाइल को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। .exe फाइल ही हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हम कस्टमर को देते हैं और जिसके कारण हमें पैसा मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है सो अब ये सब को हम .exe फाइल में सी लैंग्वेज को कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कुछ आईडी यूज करेंगे। सो आईडी के बारे में हम लोग जान ही लेते हैं। सो व्हाट इज आईडी? आईडी इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो हम लोग ये इंटीग्रेटेड आईडी आपको क्या करेगी, आपको कोड एडिट करेगी और टूल्स को बिल्ड करेगी और डिबग करेगी टूल्स को, जो कि जितना भी काम हमें सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए होता है ये सारी आपकी चीज जो है सो आईडी ही करेगी। और इसमें मतलब बहुत सारे आईडी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आईडी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके आईडी में हो गई कोड ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक्स एक आईडी होती है, और एक होती है डेव और डेव सीपीपी, और फिर होती है विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत सारी आईडी होती है। तो इसमें हम लोग जो इस सीरीज के अंदर काम करने वाले हैं वो कोड ब्लॉक्स पे देखेंगे। हम लोग सारे प्रोग्राम को हम लोग कोड ब्लॉक्स पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो how to develop a software? So basically we have two steps. The first step is create the source file, that is nothing but it is the .c file. Step 2 is build the software, that is nothing but it is the you have to build the .exe file. So फिर हमने देखा कि what is IDE, that is integrated development environment. Now अब ये पूरा काम कैसे करती है, तो हमने सीख लिया कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना। अब ये पूरा काम कैसे करती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कंपाइलर क्या करती है, यहाँ पे सोर्स कोड जो होती है ये हमारी सोर्स कोड है .c फाइल, इसको क्या करती है कंपाइलर .o फाइल दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करती है। एक यहाँ पे आपको होगा ऑब्जेक्ट फाइल भी एक मिलेगा, ये हो गया .c फाइल दैट इज कॉल्ड एज सोर्स फाइल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स फाइल। सोर्स कोड आप जो भी बोलिए इनको, सोर्स फाइल जो कि .c फाइल होती है उसको .o फाइल में कन्वर्ट करेगा। एक यहाँ पे होगा .o फाइल, क्या बनेगा .o फाइल, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल और ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल जो आप बोलिए, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करती है, कंपाइलर .c फाइल को कंपाइलर .o फाइल में कन्वर्ट कर देगी। कंपाइलर क्या करेगी, पहले .c फाइल को .o में कन्वर्ट कर देगी। अब हमने आपको लिंकर का कंसेप्ट बताया था कि एक लिंकर का काम होता है। यहाँ लिंकर क्या करेगी, लिंकर का काम क्या है, यहाँ जो .o फाइल के जो लाइब्रेरी फाइल .o फाइल के फाइल को क्या करेगी, वो लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करके एक न्यू फाइल बना देगी, उसी को कहते हैं हम लोग .exe फाइल। लिंकर का ही ये काम है।
लिंकर का क्या काम है? लिंकर का काम है कि वो क्या करेगी, .o फाइल के फाइल को लाइब्रेरी के फाइल के साथ, क्योंकि हमें प्री प्रोसेसर भी चलाना है इसी दौरान, तो ये क्या करेगी, .o फाइल के फाइल को लाइब्रेरी के फाइल के साथ लिंक करेगी, लिंकर, और लिंक करके बना देगी .exe फाइल। और .exe फाइल क्या कंटेंट करती है, 0 और 1। सो ये आपको पूरा समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और फिर से पूरा एक साथ बना। यस, सो सबसे पहले होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या चीज में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोड में। करेक्ट, सोर्स कोड कन्वर्ट होती है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड कन्वर्ट होती है ऑब्जेक्ट कोड में, ये हमने देखा था कि सोर्स कोड क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड में लेकिन इनको कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर करता है। सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में कौन, कंपाइलर विल कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद लिंकर हमने देखा था कि लिंकर का काम आता है। लिंकर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड को, क्या करता है, .exe कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। अब लिंकर क्या क्या काम करेगा, तो लिंकर का हमने क्या काम करा था, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट कोड ऑफ अदर लाइब्रेरी मॉड्यूल को लिंक करे, ऑफ अदर लाइब्रेरी मॉड्यूल मॉड्यूल्स लिंक, मॉड्यूल्स को लिंक करेगा ऑब्जेक्ट को एज नीडेड, जितना उसको नीड होगा, एज नीडेड। ओके, एज नीडेड। सो हमने जो अभी सीखा कि सबसे पहले सोर्स कोड हमें करना पड़ेगा। सोर्स कोड बना के कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा लिंकर। और लिंकर क्या करेगा उस बीच में, वो ऑब्जेक्ट कोड को और दूसरे लाइब्रेरी मॉड्यूल के साथ जो है सो लिंक करके, और जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको लिंक करके दूसरे लाइब्रेरी मॉड्यूल से लिंक करके वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमें सोर्स फाइल बनाना पड़ेगा, डेट इज .c फाइल, और उसको फिर .o फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती है, .o फाइल हमें एग्जीक्यूट नहीं होती है कोई भी कंप्यूटर में, जो कि इसको समझ में भी नहीं आएगा कंप्यूटर को, इसलिए हम उसको लिंकर क्या करती है, .exe फाइल में बनाएगी, जो कि .exe फाइल मशीन लैंग्वेज में होती है और वो एग्जीक्यूट होती है इजिली। अब हम लोग इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या होती है। तो हम लोग यूज करने वाले हैं कोड ब्लॉक आईडी। सो मैं कोड ब्लॉक से खोलता हूँ और आपको इनका लाइव एग्जांपल में अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, yes, so the code blocks is open. So इनिशियली ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ये जो मैंने सोर्स फाइल बताया, ऑब्जेक्ट फाइल बताया, इसको तो फाइल यहाँ बनाएंगे, न्यू में एम्प्टी फाइल में जाएंगे, और मैं इस प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम हमारी इस सीरीज की हो रही है, तो मैं इसको नाम रख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, और हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा .c फाइल।
तो और यहाँ जैसे अभी हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे, तो अभी आप ये टेंशन मत लीजिए कैसे मैं कोड लिख रहा हूँ, आप समझिए कि क्या हो रहा है। ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा सारा कोड। अभी मैं जरूरी जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आप खाली सुनिएगा। में और फिर printf hello this is my YouTube, this is Divija tutorial, this is Divija tutorial, yes। अब मैं इसको रन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको बिल्ड करना है, तो हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। आप बिल्ड करो और बिल्ड करके रन कर लो। मैंने पहले आपको बोला है सी फाइल आपको बनानी होगी। एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम यहाँ आ गई? ओ सॉरी, मैंने यहाँ ये हटा दिया था। यस, अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे हेलो दिस इज ए डिविजन ट्यूटोरियल। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा डॉट सी फाइल, दैट इज नथिंग बट द सोर्स फाइल। सो हमने सोर्स फाइल बनाया, ठीक है। अब मैंने सोर्स फाइल बनाया और इसको रन भी कर लिया। देखिए मैंने आपको इसको बिल्ड किया, रन किया, और इसने जब मैंने बिल्ड और रन किया तो इसने क्या बनाया होगा, डॉट ओ फाइल और डॉट सी फाइल दोनों बनाया होगा। अब मैं आपको चेक कर लेता हूँ कि डॉट ओ फाइल और सी फाइल इन्होंने बनाया है कि नहीं। एक मिनट, मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। तो हमारी फाइल की क्या नाम थी, हमारी फाइल की नाम थी फर्स्ट प्रोग्राम थी। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम बना और फर्स्ट प्रोग्राम डॉट ओ बना, और ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी है। ये हमने अभी 2:22 अभी टाइम हो रही है, उसी टाइम में हमने बनाई है। ये टाइप ओ फाइल आप देख सकते हैं, इसकी साइज, और ये आप यहाँ पे ये आपको जो आपकी डिवाइस पे होगी दैट इज नथिंग बट इट इज अ सी फाइल, और ये आपको सी फाइल और ये आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ लाइव। एक सेकंड, मैं इसका क्या करता हूँ, मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम का नाम चेंज करके अभी मैं इसका सेकंड नाम रख दूँ, ठीक है, सेकंड डॉट सी। ये देखिए मैंने इनका नाम क्या रखा, सेकंड डॉट सी। अभी मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट मैं खोजूंगा पहले सेकंड नाम की फाइल हमारी कहाँ है। सेकंड नाम की फाइल मैं खोज रहा हूँ, सेकंड नाम की फाइल हमारी कहाँ है। या सेकंड नाम की हमारी फाइल एक ही फाइल है, अभी आप देख रहे हैं, जो कि सी सोर्स फाइल है। आपको दिख रही है, जो कि सिर्फ सोर्स फाइल है, करेक्ट। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं दोनों को या अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ। मैं जैसे ही यहाँ रन करूंगा ना, ये अभी सी फाइल है सिर्फ, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ओ फाइल और एक्सी फाइल दोनों हमारी खुल जाएगी, दोनों यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए मैं जैसे ही रन करूंगा, देखिए मैंने रन किया, आ गई डॉट ओ फाइल डॉट सी फाइल डॉट एक्सी फाइल। पहले हमारे पास क्या थी, सिर्फ सी फाइल थी। जैसे ही हमने रन किया हमारे पास डॉट ओ फाइल डॉट सी और डॉट एक्सी फाइल दोनों आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको डॉट सी फाइल जो है, जो अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो उससे आपकी जो लॉजिक है वो किसी और को मिल जाएगी, और उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर कोई पैसा नहीं आपको देगा। और हमने बोला था आपको डॉट ओ फाइल जो है सो कभी भी ओपन नहीं होगा। डॉट ओ फाइल अगर आप ओपन कर रहे हैं, ये देखिए ये आपको ओपन ही नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग डॉट एक्सी फाइल जो हम देंगे यूजर को, कस्टमर को। देखिए डॉट एक्सी फाइल जब हम यूज करेंगे आराम से हमें खोल के देगा हेलो दिस इज डिविजा ट्यूटोरियल। होप आपको समझ में आ रही होगी। मैंने पूरा आपको लाइव बता दिया कैसे क्या होगा। हमने आज शुरुआत से पूरा इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री हुआ, और कैसे इसमें कोड बनते हैं, कैसे कंपाइलर काम करती है, क्या लिंकर का रोल होता है, क्या सोर्स फाइल होता है, क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, हमें सॉफ्टवेयर कैसे बनानी है, ये सब मैंने देखा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
please like and subscribe this channel, and we'll further make all the we'll make the full series of C programming. Thank you.